Hello, class ninth student. In this video, we are solving geography book chapter number 2. Its name is Physical Features of India and its question answer of NCERT book. You saw that this is our India's map. In this map, we saw five features and six physical division of India. How many physical division of India? Six physical division. First physical division is the Himalaya mountains. This is your Himalaya mountains. This is your Himalaya mountains. And second physical division is the northern plain of India. The northern plain. This is northern plain. This plain is formed by three river system. First river is Indus River. Second river is Ganga River, and third river is Brahmaputra River. Now, third physical division of India is the peninsular plateau of India. This is peninsular plateau. Its name is Deccan Plateau. Now, next physical division of India is the Great Indian Desert. The Indian Desert. Four physical division is Indian Desert. Indian Desert is spread from Rajasthan to Gujarat, and five physical division is the coastal plains of India. There are two coastal plains. This is western coastal plain of India, and this is eastern coastal plain of India. There is Eastern Ghat and there is Western Ghat. This is Malabar coast and this is Coromandel coast. In the Eastern Ghat, there is Northern Sarkar, and in the Western Ghat, there is Konkan Tat. And sixth physical division of India is Lakshadweep and Andaman Nicobar Island. Which is sixth physical division of India. Sixth physical division is Lakshadweep and Andaman Nicobar in India. They have two islands. First is Lakshadweep and second is Andaman and Nicobar Island. Now you know that all physical division of India and its question answer. Now I start first question. Land mass bounded by sea on three sides is referred to. Land mass bounded by three sides. You know that this is our peninsula. So its answer is peninsula. It is bounded by three sides by water in this side, in this side, and in this side. Next question. Mountain ranges in eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called. Forming its boundary by Myanmar. म्यांमार के पास का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पूर्वांचल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज. गोवा के आसपास का जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है? तो उससे बोला जाता है कोंकण. क्या बोला जाता है? कोंकण इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज. तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी. इट्स करेक्ट आंसर इज महेंद्रगिरी. नाउ सेकंड क्वेश्चन. देयर इज आंसर
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कैसे देने हैं, ब्रीफली देने हैं, शॉर्ट में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज भाबर। यू नो दैट व्हाट इज भाबर इन नॉर्दर्न प्लेन। This is the narrow belt of 8 to 10 kilometer in northern plain lying south of शिवालिक, जो शिवालिक रेंज के साउथ में फैला हुआ है, 8 से 10 किलोमीटर का एरिया। इन दिस बेल्ट द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जब रिवर माउंटेन से नीचे उतरती है तो यहाँ पे बहुत सारी जो पेबल्स है उनको क्या करती है, डिपॉजिट करती है। कंकड़, जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं उनको क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, और जितने भी स्ट्रीम्स, जो नदियाँ बहती है, वह यहाँ पर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मतलब एक प्रकार से जो बड़े बड़े पेबल्स होते हैं उनके अंडर में जो वाटर है फ्लो करता है, इसलिए वहाँ पे दिखाई नहीं देती स्ट्रीम्स, बहती हुई नदियाँ हमारे को। सेकंड क्वेश्चन है नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमालयाज माउंटेन के नॉर्थ टू साउथ आपको क्या बताने हैं, डिवीज़न बताने हैं। हाउ मेनी डिवीज़न, तो इसके 3 डिवीजन्स हैं। कितने डिवीज़न है, 3 डिवीज़न। हिमालयाज फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो हिमालय है हमारी सबसे उत्तरी बाउंड्री है, नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। हिमालयाज इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड लेटीट्यूडनली, ऊपर से नीचे की ओर। इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पर अधिकतर बर्फ़ जमी हुई रहती है, आइस क्या रहती है, जमी हुई रहती है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है लेज़र हिमालयाज ऑल द हिमाचल। लेज़र हिमालयाज या फिर इसको और हिमाचल हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। थर्ड पार्ट कौन सा है, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज। वो कौन सा प्लेट्यू है, तो वह है सेंट्रल हाईलैंड। कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड, जो अरावली एंड विंध्यन रेंज के बीच में है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। उस आइलैंड का नाम बताना है जहाँ पर कोरल जो होते हैं उनका ओरिजिन होता है। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड। क्या नाम है, लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको इनमें डिफरेंस बताना है भाबर एंड खादर में। क्या बताना है, डिफरेंस। तो हम डिफरेंस करते हैं इनके बीच में, बिटवीन द भांगर एंड खादर। फर्स्ट, भांगर, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये क्या है, नदियों के द्वारा जो बाढ़ के जो मैदान होते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, उसको हम कहते हैं भांगर। क्या कहते हैं, भांगर। एंड खादर, इट कंप्रेसेस द एरिया ऑफ फ्लड प्लेन्स। ये फ्लड प्लेन से अबव, ऊपर वाला पार्ट होता है, और ये फ्लड प्लेन वाला पार्ट होता है, खादर। नेक्स्ट, इट कंप्रेसेस द ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट। ये क्या है, ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट होते हैं इनके अंदर। और जो खादर है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यू एलुवियल डिपॉजिट ड्यू टू द फ्लड, क्योंकि बाढ़ के कारण यहाँ पर रेगुलरली क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट होते रहते हैं। यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है डिपॉजिट होते रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, एंड इसको कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। और ये कैसा है, न्यू पार्ट होता है। ये ओल्ड होता है और ये क्या होता है, न्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर
हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के पानी से वहाँ पर नई जो मिट्टी है वो जमा हो जाती है, जबकि ये क्या है, ओल्ड ओल्ड बाढ़ वाली क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ पहले आ चुकी है। इट फॉर्म्स अ टेरेस लाइक स्ट्रक्चर विद calcareous deposit. It forms a terrace-like structure with calcareous deposit and khadajis they are plain, fertile, ideal for the intensive farming. ये जो खादर होते हैं ये क्या होते हैं, फर्टाइल प्लेन होते हैं फॉर एग्रीकल्चर। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो हम डिफरेंस करते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बीच में। First we talk about Western Ghat. They form the westernmost boundary of peninsular plateau. पेनिनसुलर प्लेटू की वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाते हैं, वेस्टर्न घाट बनाते हैं। इसी प्रकार से ये जो ईस्टर्न घाट है ये क्या करते हैं, फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। फॉर्म फॉर्म द ये डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाते हैं, पूर्वी बाउंड्री बनाते हैं। वेस्टर्न घाट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड ईस्टर्न घाट में दे आर हाईली इरोडेड, दे आर एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर होती है। वेस्टर्न घाट दे आर कंटिन्यूस, ये कैसे कंटिन्यूस है, लगातार ये सतत हैं। दे आर हाईली डिसेक्टेड ड्यू टू द रिवर इन्फ्लुएंस, और ये क्या है, कटे फटे हैं किसके कारण, नदियों के कारण। टुवर्ड्स द साउथ दे gain altitude and are higher than the eastern घाट। वेस्टर्न घाट जो है हायर देन द ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट से ऊंचे हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। दे आर कंपेरेटिवली लेजर हायर देन द वेस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट से क्या है, नीचे हैं, और वेस्टर्न घाट क्या है, ऊंचे हैं। मतलब जो वेस्टर्न घाट है उनकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, एंड जो ईस्टर्न घाट है उसकी जो हाइट है वो क्या है, कम है। इसलिए जितनी भी नदियाँ हमारे पेनिनसुलर में बहती हैं वो सारी की सारी नदियों का जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई से होता है, और वो फिर ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इसी पर यहीं पर हमारा जो ये वीडियो है वह समाप्त होता है। थैंक यू फॉर द watching this video. If you like my video, please subscribe my channel and press bell icon for valuable videos notification. Now again you subscribe my channel. My channel name is Education Gyan Master Rakesh. Thank you.